No issue in that. You can skip it and you can study, you can solve the other questions. श्रेया बेटा आपको कोच बना रहे हैं. Okay, sir. So from here we have to basically I've written all the questions, almost all the questions on the booklet. Or let me choose. This. So first question is this, which I choose because in this, first of all, you have to write the ionic form and then you have to proceed. And after that, you have to again add the expected ions. So let's solve this. First of all, what is written? K2Cr2 7. Everyone try to understand. It is just a revision. Still, everyone should just focus on this. K2SO4, Cr2SO4 thrice, water. So these are the other things. So right now, what you can observe in this K plus and Cr2 2 minus is there. This is sulfate ion. This is SO2 gas. Again, if you break into K plus and sulfate ion, if you break this into Cr3 plus and SO4 2 minus. First of all, it is not mentioned you have to balance in acidic or basic, but H2SO4 is a hint to balance in what? Acidic medium. So you have to balance this redox reaction in acidic medium. So H2SO4, if you check, both sides are there, sulfate ion. So sulfate ion is not changing from H2SO4, but SO2 is changing. So basically, what is the half reaction you have to write? SO2 gas converted to SO4 2 minus and Cr2 7 converted to Cr3 plus. So these two half reactions are there only. No, sulfate you can take from anyone. This is sulfate only. So the half reactions are Cr2 2 minus giving Cr3 plus. So these are two half reactions. Now, which is oxidation or which is reduction, we don't have to bother about it. While in the process of balancing, you will realize which is oxidation, which is reduction. Now, after this, you know very well. Most important thing was you have to write the ionic form, remove the expected ions. So what are the expected ions you have? In the left hand side, it is K plus. Right hand side, K plus. Left hand side, sulfate ion. But right hand side, not all the sulfate ions are spectator ion. Very important. Some sulfate ion is generated due to the oxidation of SO2 or reduction of SO2. We'll decide it. But if you want to check that, you can predict there also. It is +4, it is +6. So definitely it is oxidation. But you don't have to bother about it. You can verify it. So how to proceed? It is deficiency of 2 oxygen atom. Then you have to add 4H plus. It means 2 electron. Now you can see the electrons are there in right hand side. So it is oxidation. I will also tell you to find out n factor here. If I ask you what is the n factor of SO2 without calculating the change in oxidation state, just mention what? There are 2 electrons transferred per molecule of SO2. So n factor is 2 only. Second, Cr2 2 minus we have taken many times. So first of all, you have to balance the atoms other than oxygen and hydrogen. Then oxygen.
then hydrogen. Now you have to check the charge. What is the charge present here? +6. One chromium has +3, two chromium has +6. One chromate and dichromate ion has -2. One H plus has one positive, but 14 H plus has 14 positive. So 14 positive and -2 becomes 12. This will add up to give +12 +6, which is higher value. +12 is higher value. So wherever the higher value is there, just add number of electrons equal to the difference between the numbers. So +12 and +6 का difference क्या होगा? 6. So you can just add 6 electrons. From here also, you can easily tell the n factor of Cr2O7. What is n factor of this? 6. But if I ask you what is n factor of this? 3. Because 2 chromium 3 plus has 6 electron transferred. So 1 chromium 3 plus having 3 electron transfer. So these two are balanced reaction. I will again write. So this is oxidation and this is reduction, because addition of electron takes place in the second half reaction. Okay. Now what you have to do? Make the electron transfer equal. Here there are 6 electrons, there are 2 electrons. You have to multiply by 3. Now you have to add it, or you can write after multiplication. Six H2O, 3SO2, 3SO4 2 minus, 12 H plus, 6 electrons. This. Now you have to add it. ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स दोनों तरफ अपोजिट साइड में है, कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे कितने H2O हैं? 6. यहाँ पे कितने H2O हैं? 7. Again cancel it. The extra oxygen you can keep it. 12 H plus and 14 H plus. So 2 H plus will be excess. So what will be happening? 2 H plus plus 3 SO2 plus Cr2O7 2 minus 2 Cr3 plus 3 SO4 2 minus plus H2O. Check whether it is balanced or not. It is not complete balanced reaction. We just balanced it. Balance the half reaction, ionic form only. We can mention after removing spectator ions. So what is the ionic form? Ionic form is Cr2O7 2 minus plus SO2 giving Cr3 plus plus SO4 2 minus. Simple. And you have to balance this in the medium of acid, and acid will be what? H2SO4. Earlier we used to add only H plus and leave it, but here you have to finally maintain what? Acid is coming from H2SO4. H plus is coming from H2SO4. So this is a balanced reaction. Please check. सब देख लीजिए एक बार. सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो ना. हाँ, आराम से देखिए. एक बैलेंस सीखा मतलब सभी सीख लिया. अच्छा,
अब इफ यू वांट टू कंफर्म दैट H प्लस मीडियम में नहीं है, तो यहीं पे आपको क्या करनी है, बेसिक मीडियम में करनी है मान लो, तो यू जस्ट ऐड टू OH माइनस ऑन बोथ साइड्स, बन जाएगा वो बेसिक मीडियम का। वो अलग बात है कि ये नहीं होगा रिएक्शन, बट मेथड विल बी सेम टिल हियर, एंड ऐड OH माइनस, द नंबर ऑफ OH माइनस शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ H प्लस प्रेजेंट इन दैट साइड, दोनों तरफ उतना ही ऐड कर देंगे। देखिए, तो मैंने, तुम क्लास जैसा परफॉर्मेंस क्लास में क्यों रखते हो, तुम क्लास में जो इतना लाइव रहते हो, ऑनलाइन में क्या हो गया? तो मैं नहीं, हाँ सर। तो डल नहीं रहना चाहिए ना, क्लास में जैसा तुम वैसे रहो। सर ऑनलाइन में म्यूट का ऑप्शन होता है ना। वाह और ऑफलाइन में अपने माइंड में नहीं होता कि म्यूट कर ले? म्यूट तो आप ही कर रहे हैं ना, आप जो आप जो नहीं बोल रहे हैं वो आप ही डिसाइड कर रहे हैं ना, हमने तो नहीं किया कुछ। बीच में आप अनम्यूट करके बोल ही सकते हैं ना कि मैं कुछ पत्थर फेंक दूंगा यहाँ से, बताइए। क्लास में आप अपने आप को अनम्यूट करके बोलते ही है ना, यहाँ भी आप बोल सकते हैं। कंप्लीटेड? सर ओमकार, हाँ बोलो ऋषा। सर ये वाली इक्वेशन में अभी जो लास्ट बैलेंस किया ना, उसमें वापस स्पेक्टेटर आयंस अभी आप कैसे डालेंगे? वो करूंगा ना, वही तो सिखाना है। अच्छा, इस क्वेश्चन को क्यों पिक किया मैंने? टू टीच दैट ओनली ना, टू शो दैट सर ओनली। आपने जितना सॉल्व किया वो एकदम इजीली हो जाता है, बट स्पेक्टेटर आयन वापस डालने में डिफिकल्टी होता है। कोई बात नहीं बेटा, तभी तो उसको, इस क्वेश्चन को पिक किया मैंने, डोंट वरी, तभी पिक किया है। श्रेयस समझ में आया बेटा? श्रेयस है कि नहीं सेशन में? श्रेयस नहीं है हो सर मैं। तो आवाज क्यों नहीं निकाल रहे हो? हाँ सर, समझा। तुम क्लास में सिर्फ ढंग से सुनो, बाकी तुम पढ़ो ना पढ़ो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? ठीक है तुम सर। क्लास में भी नहीं पढ़ोगे तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक क्यों कर रहे हो? ये नहीं बोल सकते नहीं सर क्लास के बाद नहीं पढ़ूंगा। हाँ सर, क्लास के बाद भी पढ़ूंगा। कुछ नहीं बेटा, चिल मार के पढ़ाई कर सकते हो, उस क्लास में बस अटेंटिव रहिए। और मैं आपको साफ कह दूं कि ऑनलाइन का जो टीचिंग है, अगर आप रेडी हो उधर से पढ़ने के लिए तो ऑफलाइन से बेटर होता है, लेकिन वो प्रैक्टिकली कोई मानते नहीं है, मैं भी नहीं मानता, क्योंकि आप नहीं आउटपुट देते इसीलिए। अभी ऑफलाइन था तो सबने आउटपुट दिया था, लेकिन ऑनलाइन हुआ तो फिर से वो डल हो गए सब लोग। डल नहीं करना अपने आप को। Seriously, I cannot teach this much of content if it is offline. If it is impossible. ठीक है, सबका डन? अब आते हैं एक्सपेक्टेड आयन लगाते हैं। अब खुद सोचिए, H प्लस है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड नहीं है कुछ, पर H प्लस का सोर्स क्या है? सोर्स ऑफ H प्लस इज व्हाट? H2SO4। H2SO4। तो जस्ट रिप्लेस H प्लस विथ व्हाट? H2SO4। कितने H प्लस दिख रहे हैं आपको? 2H+। 1 H2SO4 provide how many H plus? 2H+। 2H plus. It means 2H plus can be replaced directly by H2SO4 बिना कुछ सोचे हुए। हाँ सर। वो अलग बात है कि बैलेंसिंग डिस्टर्ब हो जाएगी, है कि नहीं? हाँ सर। बट बैलेंसिंग डिस्टर्ब क्यों होगी? हमने लेफ्ट हैंड साइड H2SO4 ऐड किया, इसका मतलब H प्लस तो ऐड किया ही, पर एक्स्ट्रा क्या ऐड कर दिया? SO4। SO4 क्या होता है? SO4 2 माइनस, तो SO4 2 माइनस ऐड कर दिया। फिर आप बोलेंगे सर चार्ज भी डिस्टर्ब हो गया होगा, बिल्कुल हो गया होगा, चार्ज डिस्टर्ब हो सकता है, चार्ज डिस्टर्ब हो गया, ठीक है? हेलो, कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। नाउ K2Cr27 गिवन नहीं था, क्या गिवन था? K2Cr27 गिवन था, तो कैन आई से दैट K2Cr27 2 माइनस 1 K2Cr27 provides
how many Cr27? 1 Cr2 1 Cr27. So in place of Cr27 2 minus, if I put it like this, लगा दो तो K2Cr27, कोई गलत नहीं होगा. बट उसको करने से मुझे राइट हैंड साइड भी क्या ऐड करनी पड़ेगी? K2 K2, मतलब 2K प्लस ऐड करनी पड़ेगी. देखते जाना, कुछ नया नहीं कर रहे हैं. सबसे पहले ये क्लैरिटी लाइए कि मेरा आयनिक फॉर्म अगर बैलेंस है तो उसके बाद कुछ भी टफ नहीं है. जो आपको टफ लग रहा है वो बिल्कुल कुछ भी टफ नहीं है. क्यों टफ नहीं है? दोनों तरफ 2H प्लस था, तो 2H प्लस से मैं H2SO4 लिखूंगा तो दोनों तरफ क्या ऐड करूंगा? सल्फेट. SO4 2 minus. तो मैं उस स्टेप को भी मेंशन कर देता हूँ. व्हाई शुड आई लीव दैट? मैंने क्या किया, यहाँ पे सल्फेट ऐड किया, यहाँ सल्फेट ऐड किया, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा बिकॉज इट इज बैलेंस्ड ऑलरेडी. ठीक है ना? बताइए, हाँ सर. यहाँ तो कोई डाउट है? नो सर. हमने क्या किया, K प्लस ऐड किया, या वो भी स्टेप दिखा देते हैं आपको. लेंथी लगेगा आपको, लेंथी नहीं है, सब मन में हो जाता है. सिंपली क्या ऐड किया हमने, 2K प्लस ऐड कर दिया, तो यहाँ भी क्या ऐड कर दिया, 2K प्लस. कोई डाउट है इसमें? बताइए. नो सर. नो सर. अब मुझे बताओ, K प्लस और सल्फेट आयन क्या बन जाएगा? K2SO4. K2SO4. और ये क्या बन जाएगा? Cr2SO4 thrice. Cr2 में 2 क्रोमियम, तो 2Cr में भी 2 क्रोमियम. Cr2SO4 थ्राइस में 3 सल्फेट, तो 3 सल्फेट में 3 सल्फेट, प्लस K2SO4 प्लस H2. You got your final balance equation. लीजिए. तो क्या डिफिकल्टी थी? कोई डिफिकल्टी थी ही नहीं. सिर्फ आयंस जो थे उसको कंबाइन कर सॉल्ट बना दिया, क्योंकि बैलेंस तो हो चुकी है. सिर्फ एक्सपेक्टेड आयन ही तो ऐड करना है, और एक्सपेक्टेड आयन दोनों तरफ सेम ही होते हैं. दोनों तरफ सेम ही ऐड करोगे, इससे फर्क ही नहीं पड़ेगा बैलेंसिंग में. वो अलग बात है कि लास्ट मोमेंट क्या होती है कि जो K प्लस और Cr27 2 minus will combine to form K2Cr27. Sulfate ion and K plus will combine to give K2Cr27, or Cr3 plus 2Cr3 plus and 3 sulfate ion will give you Cr2SO4 thrice. कहाँ डिफिकल्टी है? इसे बताओ, डिफिकल्टी लगी कुछ? नहीं सर. ये डिफिकल्टी होती है बिकॉज प्रैक्टिस नहीं रहती, तो हम घबराते हैं टेस्ट के टाइम पे. घबराना नहीं है. अगर आपका आयनिक फॉर्म बैलेंस्ड है तो इट इज वेरी इजी टास्क, बिकॉज स्पेक्टेटर आयन दोनों तरफ सेम ही होंगे. तो स्पेक्टेटर आयन दोनों तरफ लगाओगे तो बैलेंसिंग में फर्क कैसे पड़ेगा? पड़ ही नहीं सकता. क्लियर है? हाँ सर. बिकॉज मुझे Cr272 तो एक ही चाहिए था, तो Cr272 मैंने अगर एक ही चाहिए था तो 2 ही K प्लस लगा सकते. अगर 2 चाहिए होता तो 4K प्लस लगा देते, दोनों तरफ 4K प्लस लगा देते, तो फर्क ही नहीं पड़ता, दिक्कत ही नहीं आती. डन? यस सर. सर और एक ऐसा ही क्वेश्चन दोगे क्या? क्वेश्चन तो मैं दे ही सकता हूँ. जो अपना बेसिक क्वेश्चन है वही कर लो. KMnO4 plus H2C2O4 H2SO4. ये रुकिए, मैं सोच रहा हूँ, देखता हूँ कि बन जाए सिंपल क्वेश्चन.
यार रुकिए ना, टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी से निकाल लेते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन को ही बैलेंस कर लीजिए। इन्होंने भी हाफ रिएक्शन देख कर रखा है। वही क्वेश्चन रिपीटेड है बाद में। सर अभी जो आपने क्वेश्चन किया ना वही एक ऐसा फुल है, वरना ऑलमोस्ट सब आयोनिक फॉर्म में ही दिया हुआ। नहीं ऐसा क्यों, देखो ना मैं बताता हूँ। कहाँ गया आपका जो सबसे प्यारा क्वेश्चन है बुकलेट का, वही कर लो ना, है ना 48 नंबर। हाँ सर, वो पूरा बैलेंस हाँ करके वही करना सर। वही कर लो, बैलेंस भी करना सीख लेंगे और क्वेश्चन भी बन जाएगा आपका। ये देखिए इस क्वेश्चन हाँ को सर। बैलेंसिंग के साथ सॉल्व कर लेंगे। तो पहले बिना बैलेंसिंग के तो पहले क्वेश्चन नहीं होगा, तो यू हैव टू बैलेंस द इक्वेशन फर्स्ट। मुझे तो सबसे अच्छा क्वेश्चन ये लगता है, सबसे अच्छा क्वेश्चन। तो के आई अभी तो और इसलिए टफ है, देखना कैसे करना है। के आई प्लस एच टू, सो फोर गिविंग आई टू प्लस एच टू एस, ठीक है। के आई प्लस एच टू, सो फोर गिविंग आई टू प्लस एच टू एस। को करिए बैलेंस। फिर आप कहेंगे सर के आई के कहाँ गया, तो डेफिनेटली के इज स्पेक्टेटर आयन। रोल किसका है, आई और एच टू सो फोर का, और बैलेंस करनी है एसिडिक मीडियम में ही, बैलेंसिंग इन एसिडिक मीडियम। करिए, उनका तूने सेंड किया था मुझे। हाँ सर। तो इसमें कंप्लीट रिएक्शन क्या था उनका, के आई प्लस एच टू एस ओ फोर गिविंग आई टू प्लस K2SO4. के टू एस ओ फोर एच टू एस प्लस एच टू, यही था ना। तो इसी को पिक कर लेंगे। अब यहाँ पे हाँ ये सर। सोचना कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, तो आपको समझना ही पड़ेगा, बिना उसके आगे बढ़ने से। गिव अ ट्राई ऑन दिस। ओमकार
आप लोग का हो चुका है सब कुछ? हाँ सर, Sharing- वॉल्यूमेट्रिक कर रहे हैं क्या वॉल्यूमेट्रिक? सर, पढ़ रहा हूँ वॉल्यूमेट्रिक का नोट्स। हाँ पढ़ लो, वह देख लो। मैं शेयर कर रहा हूँ नोट्स, असाइनमेंट शेयर कर रहा हूँ एक्स्ट्रा। बुकलेट तो हो गए हैं आप लोग के, हो गया है ना? एक्सरसाइज 1-3 को डाउट है? बोलो। नहीं सर। तो फिर आप असाइनमेंट ही सॉल्व करिए। सर बस सब्जेक्टिव बाकी है थोड़ा सा। ठीक है, सब्जेक्टिव तो इट विल टेक टाइम। सबके पास पी बहादुर बुक है ना? बुक नहीं है? बोलो। नहीं है सर। नहीं है सर। ओके। तो पी बहादुर का बुक शेयर करता हूं मैं। और नीट वाले को बनाने की जरूरत नहीं है। जेई वालों को रिडॉक्स टाइट्रेशन, उसमें एक चैप्टर होगा। रिडॉक्स रिएक्शन नहीं, रिडॉक्स टाइट्रेशन। उसकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप हर दिन या हर दिन कर लो, 3 से 4 क्वेश्चन बनाइएगा और फिर खत्म करिएगा विदाउट चेकिंग द सॉल्यूशन। डिफिकल्टी विल बी देयर। नीट शुड नॉट सॉल्व, नीट शुड नॉट सॉल्व। जो असाइनमेंट शेयर कर रहा हूँ वो आप बना सकते हैं, कोई भी बना सकते हैं। सर ये जो रिएक्शन आपने दिया है बोलिए मैडम। उसमें उसमें सेकेंड वाला रिएक्शन SO4 हाँ जी। 2 माइनस से H2 माइनस बनेगा ना? वो हम क्यों बताएं? वो भी अभी हम बताएं? दिशा, नहीं सर। वो भी बताने की जरूरत है? खुद बता दो, वो भी बताने की जरूरत है पहले? नहीं सर। डेफिनेटली दो ही चीज दिख रही है क्वेश्चन में, SO4 से SO4, SO4 से H2S। तो डेफिनेटली SO4 से SO4 तो रिडॉक्स नहीं होती, SO4 से H2S ही होगा। थिंक एंड सॉल्व इट ना। सर आपने जो सेकेंड इक्वेशन लिखा है उसमें बैलेंसिंग के पहले आपने K2SO4 और H2O को भी ऐड किया है, कि वो बैलेंसिंग के बाद आना चाहिए? हाँ, बैलेंसिंग के बाद आना चाहिए। तो बेसिकली हाफ रिएक्शन क्या होगा? मतलब एक्सपेक्टेड टाइम तय क्या है? सर K प्लस नॉट एंड ओनली K H प्लस, प्लस। H प्लस तो ठीक है, यूज्ड इन बैलेंसिंग। और क्या है बताइए? आउट ऑफ some H2SO4, out of total H2SO4 used, tough part, total H2SO4 used, some H2SO4 is not involved in redox. So therefore some sulfate ion is what? Spectator ion. पहले आप सिंपल हाफ रिएक्शन बैलेंस करिए, हाफ रिएक्शन लिख के। तो व्हाट इज द हाफ रिएक्शन? टेल मी। सर I minus giving I2. I minus plus H2SO4 giving I2 plus H2S। H2S। बस उसको आप बैलेंस करिए जैसे ऊपर वाला मेथड था। I minus giving I2, H2SO4 giving
H2S पूरी बैलेंस करिए इन एसिडिक मीडियम। सर अगर इसमें से हम लोग ने H प्लस को भी निकाला और SO4 माइनस गिविंग H2 माइनस लिखा तो वो सही है कि गलत है? क्या फिर से बोलो फिर से। SO4 2 माइनस गिविंग H2 माइनस। और गलत होगा क्योंकि गलत नहीं भी कह सकते हैं बट H प्लस तो लगानी पड़ेगी ना दोनों तरफ। हमारा प्रोडक्ट H2S है, ठीक है, और H2S इज अ वीक एसिड, H2S is a covalent compound। H2S क्या है? Covalent compound है। Covalent compound is not present in the salt form. Still you can, if you write it also, it will be combined with H+। जैसे CO2 को कभी स्प्लिट नहीं करेंगे हम, CO2 में छोड़ देंगे, तो H2S भी H2S में ही छोड़ देंगे। वही अगर Na2S होता, वेरी गुड क्वेश्चन, वही अगर Na2S होता तो आराम से उसको आप Na+ और सल्फाइड आयन में स्प्लिट कर लेते, क्योंकि ये सॉल्ट है, ठीक है ना। तो कोवेलेंट कंपाउंड को जनरली हम आयंस में स्प्लिट नहीं करके लिखते। क्लियर? यस सर। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कभी भी कोवेलेंट कंपाउंड को आयंस में मत स्प्लिट कर देना। सिर्फ जे वाले हाथ रेस करिए। सिर्फ जे वाले हाथ रेस करिए, 2 सेकंड, 2 मिनट के लिए। माधवी, मुस्कान, साहिल, सनल, उम्मेनी, कुणाल नहीं है? कुणाल जेई हो ना? यही सलोनी जेई, माधवी मेडिकल ना? यस सर। माधवी तुम्हारा मार्क्स खराब नहीं होना चाहिए टेस्ट में। अभी पढ़ाई हो रही है तुम्हारी? माधवी बोलो। हाँ सर। तुम्हारा आवाज इतना मतलब खराब क्यों है? गुस्सा वाला आवाज है, ऐसा है क्या? नहीं सर ऐसे नहीं। लग तो रहा है ऐसा कि है, छोड़ो ना, क्या ऐसा आवाज, ऐसा ही दिशा है ना? दिशा, हाँ सर। क्यों पूछ रहा कुछ भी ऐसा? तो माधवी, सनल, मेडिकल कितने में? ठीक है, हाँ मेडिकल वाले हाथ रेस कर लीजिए। आकांक्षा मेडिकल हो? मेडिकल वाले हाथ रेस करिए, सिर्फ सिर्फ मेडिकल वाले। चलो नहीं, आप जेई हो ना?
सलोनी है सेशन में? सनल, साहिल, ठीक है बेटा। हाँ सॉल्व करिए आप लोग तब तक, सॉरी। सर हाँ बताइए। सर मुझे आ रहा है 8i माइनस plus 5H2SO4 giving 4I2 plus H2S plus 4H2O. एक मिनट लिख लेता हूँ बेटा, बताओ। 8i minus 8i माइनस प्लस plus 5H2SO4 हम्म giving 4I2 plus H2S plus 4H2O. 4 H2O. तो बैलेंस कहाँ हुआ? इट इज नॉट अ बैलेंस रिएक्शन ना। सर इसमें K और SO4 माइनस K और SO4 बैलेंस नहीं हुआ। तो 5H2SO4 कैसे आ गया? सर 4H2SO4 वो हाफ बैलेंस रिएक्शन से और एक पहले का H2SO4 बताओ, पहले का बताओ, विदाउट एडिंग स्पेक्टेटर आयन, वो बताओ। 8i minus plus 4H2SO4 giving 4I2 plus H2S plus तभी बैलेंस 4H2. नहीं होगा, बिकॉज 4 सल्फेट है, एक ही H2S है, कैसे बैलेंस होगा? यू चेक द बैलेंसिंग ना, बैलेंसिंग ऑफ एटम मस्ट बी देयर ना। बताइए, देखिए सब लोग, I माइनस है I2, इट इज 2I माइनस 2 व्हाट I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, वेरी सिंपल। H2SO4 giving H2S, so you have to add 4H2O plus बताइए H2O 4H2 ऐड किया मैंने, तो यहाँ पे कितने ऐड करने पड़ेंगे हाइड्रोजन? 8H plus कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे? 8 electrons. तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा? 4 से। 4 से तो क्या होगा ऐड होने के बाद? 8I माइनस प्लस 8H प्लस प्लस H2SO4 giving I2 or 4I2 plus H2S H2S. 4H2O, ठीक। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जस्ट अ नॉर्मल बैलेंसिंग। ये आया सर। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। अब इसके बाद 8H प्लस है यहाँ पे, तो 8H प्लस का सोर्स क्या होगा? H2SO4 ही होगा। कैन वी राइट 4H2SO4? यस सर। और सिंपली 8H प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए यू कैन ऐड व्हाट? OH माइनस। OH कहाँ से आ गया? देखो, तुम्हें जादू मत क्या करो बीच में। एसिडिक बैलेंसिंग कर रहे हैं, बेस कहाँ से आ जाएगा? 8H प्लस को बैलेंस करने, बिकॉज इट इज नॉट H प्लस, इट इज H2SO4, तो वी हैव टू ऐड व्हाट? 4SO4 टू माइनस, तो यहाँ भी क्या होगा? प्लस 4SO4 माइनस। ठीक है, अब I माइनस नहीं था, Ki था, और 8I माइनस है, तो कितने K प्लस ऐड करने पड़ेंगे? 8 K प्लस। 8K प्लस, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 8K प्लस। नाउ कंबाइन एवरीथिंग, 8Ki plus this becomes what?
4H2SO4 4H2SO4 plus H2SO4 4I2 H2S 4K2SO4 plus 4H2O. Now this becomes what? 5H2SO4 हो गया। ऊपर का क्वेश्चन कैसे बन जाएगा? क्वेश्चन ने पूछा है, फिर से ले आते हैं क्वेश्चन को। कहता है H2SO4 को सॉल्विंग तो ये यूज होगी। Ki reacts with this H2SO4, ये 0.2 मोलर H2SO4 है। H2S कितना बना? 0.1 मोल्स बना। वॉल्यूम हमें नहीं पता, तो मोल्स कितने होंगे? 0.2 into volume in liter. Since you have a balanced reaction, applying mole analysis, है ना? Applying mole analysis, क्या लिखेंगे? Number of moles of H2SO4 reacted upon 5, number of moles of H2S upon 1. 1 तो molarity into volume upon 5 equal to 0.1 upon 1. So volume is nothing but 5 upon 0.2 into 0.1. क्या वैल्यू आ जाएगी? 2.5 ऑल्टरनेटिवली देखोगे, बोलोगे सर n फैक्टर से करके दिखाओ। सुमित n फैक्टर से कैसे करें? सुमित हाँ सर। n फैक्टर इक्विवेलेंट मेथड से कैसे करें? सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? लेफ्ट हैंड साइड +6। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -2। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर क्या है? +6। plus Out of 5 sulfate ion, how many sulfate ion out of, definitely +6 से -2 क्या होगा? रिडक्शन। बट +6 से +6 क्या होगा? नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आउट ऑफ 5 H2SO4, दिस इज टफ जो हम डिस्कस कर रहे हैं, मुश्किल भी होता है, इसके एग्जांपल्स भी कराया मैंने आपको। आउट ऑफ 5 H2SO4, how many sulfur is participating? 1 Only 1 sulfur is participating. Very good. In redox, change in oxidation state? 8 Very good. 8. Change in oxidation state, total change कितना हुआ फिर? 8 ही हुआ ना? हाँ सर Total change in oxidation state will be also what? 8 Change in oxidation state for 1 sulfur is this will be also 8. Now 5 molecules of H2SO4 के लिए चेंज कितनी है? 8 तो 1 molecule of H2SO4 के लिए
8/5. 8/5. Therefore, n factor of H2SO4 in above reaction 8/5. 8/5. ठीक है। नाउ n फैक्टर H2S क्या होगा, लेकिन 8 ही होगा बिकॉज एक ही H2S है। क्लैरिटी है? हाँ सर। H2S का n फैक्टर 8 होगा। दिस इसका 0.2 मोल है, इसका 0.1 मोल, n फैक्टर 8, n फैक्टर 8/5, वॉल्यूम वी डोंट नो, तो 0.2 इंटू वॉल्यूम इंटू n फैक्टर क्या हो गया, इक्विवेलेंट। 0.1 इंटू 8 क्या हो गया, इक्विवेलेंट। दोनों क्या होंगे, इक्वल। ये कभी नहीं आएगा कभी एग्जाम में, नीट में तो कभी नहीं आएगा, वैसे भी कभी नहीं आता ऐसा मेथड वाला, पर आएगा तो कर लीजिएगा। हो गया। सर एक बार वापस बताओगे क्या कि रीजन क्या होता है, हम लोग पूरा लिख के क्यों सॉल्व करते हैं, और जो फर्स्ट हम लोग डायरेक्ट इक्विवेलेंस इक्वल क्यों नहीं करते, पहले बैलेंस करते हैं। Because not all the H2SO4, जैसे if you check here K2Cr2 7, ऊपर वाले एग्जांपल्स को हम कर सकते थे, अगर मैं इससे रिलेटेड प्रॉब्लम देता तो आप आराम से कर सकते थे, बिकॉज SO2 इज पार्टिसिपेटिंग इन रिडॉक्स, तो सारे SO2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं। K2Cr2 7 पार्टिसिपेटिंग इन रिडॉक्स, सारे K2Cr2 7 पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बट अगर reactants are not participating in redox completely, then we have to find the n factor first, और n factor आप बिना बैलेंस के निकाल ही नहीं सकते, because we don't know how many molecules are not participating in redox, तो total change in oxidation state per molecule करेंगे कैसे। but here all the molecules are participating in redox, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, total change in oxidation state per molecule से ही आप कर सकते हैं। ओके सर। That was the most difficult problem. This I consider most difficult because लोग मैंने भी जब 48 नंबर किया तो फर्स्ट अटेम्प्ट में गलती हुई थी, आंसर मैच नहीं हुआ था। फिर मैंने सोचा कि करना क्या है इसमें, फिर गलत क्या है, फिर टाइम लगी उसमें, और टाइम लगा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, काफी टाइम लगा है। अभी तो बड़े आसानी से आपको मैंने बता दिया, बट दिस क्वेश्चन नीड्स टाइम, बिकॉज ये क्लैरिटी उन्होंने दिया नहीं कि H2SO4 एसिडिक मीडियम भी प्रोवाइड कर रहा है। आर यू गेटिंग इट? H2SO4 इज ओनली एसिड इन दिस प्रॉब्लम, ये कहाँ मेंशन है? हो सकता है एसिडिक मीडियम के लिए कोई और कंपाउंड ले लिया होगा, वो नहीं लिखा उन्होंने, तो इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जो भी गलती करेगा पहले, जो भी पहले बार सॉल्व करेगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी लर्निंग क्या थी इस प्रॉब्लम में कि H2SO4 not only acting as what, reducing agent or oxidizing agent, but also acting as acid. In this problem most important is what, बोलो, H2SO4 is oxidizing agent as well as प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम। provides H plus या source of H plus, और provides इतने टफ तो जाते भी नहीं है क्वेश्चन में सॉल्विंग में। देखो आप लोग को असाइनमेंट शेयर किया मैंने, प्लीज बनाइएगा आप लोग। दोनों का असाइनमेंट सेम है, बाद में इसमें मैं और ऐड करूंगा। फर्स्ट लेवल सेम ही होता है, जे वाले ये हो जाता है तो हमसे नया असाइनमेंट मांग लीजिएगा, ठीक है। ये सिंगल चॉइस है, फिर आपको हम उसमें मल्टीपल चॉइस कॉम्प्रिहेंशन वाले बुक के बना के रखा मैंने, अलग अलग सेपरेट रखा है। ये भी हो गया हमारा सॉल्विंग क्वेश्चन।
Try to check the solved examples also. Don't leave that. Neat booklet, titration problems. और जेई वाले बुकलेट हमने पहले कर रखा है, तो नीट वाले कर लेते हैं डिस्कशन. क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम मिल जाएंगे आपको. 80 ml ऑफ KNO4 सॉल्यूशन. अब देखिए कितना आसान है. KNO4 लिखना है, Na2C2O4 डॉट 2H2 कोई काम नहीं, Na का कोई काम नहीं, एसिडिक मीडियम. ऑक्सिलेट आयन का फैक्टर क्या होता है? 2. सब लोग हैं? हाँ सर. ये 3.4 ग्राम. ऑक्सिलेट आयन का फैक्टर पता है ना सबको? हाँ सर. ऑक्सिलेट आयन किसमें कन्वर्ट होती है? CO2 में. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन क्या होती है? +3. यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन क्या होगा? +4. ये खुद क्या हो गया? ऑक्सीडेशन. तो ये कैसा रिएजेंट हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट. फॉर 1 कार्बन चेंज कितनी हुई? 1. पर एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन? 2. तो एन फैक्टर क्या हो गया? एन फैक्टर C2O4 2- का बोलो. एन फैक्टर Na2C2O4 का बोलो. एन फैक्टर H2C2O4 का बोलो. एन फैक्टर Fe2C2O4 थ्राइस का बोलो. कितना होगा? 6. क्यों? क्योंकि एक ऑक्सिलेट का एक का दो फैक्टर, है. बट C2O4 का कितना C2O4 मॉलिक्यूल है? 3 है. 3. एक के अंदर तो 6 हो जाएगा. इसमें Fe पार्टिसिपेट नहीं करने वाला. एक और लिख देता हूँ समझने के लिए. एन फैक्टर Fe2O4 2 + 1 3, बिकॉज 2 तो ऑक्सिलेट से आ गया और 1 किससे आया? Fe से. Fe. और यहाँ पे 3 × 2 लिखो, 6 × 1 लिखो, 6. तो यहाँ पे 3.4 ग्राम है. Na2CO4 2H2O का मोलर मास कितना है? अज्यूम दैट मोलर मास अगर m है तो मोल्स क्या होगा? 3.4 अपॉन दिस. मिली मोल्स क्या होंगे? 3.4 अपॉन m × 1000. इक्विवेलेंट्स क्या होंगे? 3.4 अपॉन m × 1000 × 2. क्या हो गया? मिली इक्विवेलेंट. मोलारिटी हमें नहीं पता. इसका डेटा क्या होगा? मोलारिटी इंटू 80 मोल्स हो गए, मिली मोल्स, इंटू 5 क्या हो गया? मिली इक्विवेलेंट्स. ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल. ऐसा सब हो गए थे क्वेश्चन सारे. हाँ सर. इसको सॉल्व कीजिएगा. हमारा भी क्वेश्चन सॉल्व किया तुमने सारा? हाँ सर किया था. पक्का? हाँ सर. m1 क्या है? मोलर मास मुझे आप निकाल सकते हैं. क्या मोलर मास था? बता ही दो ना. मोलर मास क्या दिशा? 170. मतलब 3.4 है ना. क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था 170? 170 170 170 170 170. हम सॉल्व कर सकते हैं आराम से. निकल जाएगा.
सर आपने ऐसे क्यों बोला कि 3.4 है तो 170 क्यों एक्सपेक्ट किया? और देखो क्वेश्चन में कभी भी आपको कैलकुलेशन से परेशान नहीं करते, 90% चांसेस है। तो 3.4 किसका मल्टीपल होगा? 17 का ही मल्टीपल होगा। हाँ सर। और ऑक्सिलेट आयन है तो ऑक्सिलेट का H2CO4 का 90 मुझे पता है, H2CO4 का मुझे 90 पता होता है मोलर मास। तो डेफिनेटली C2O4 का क्या होगा? 88। अब ऐड करेंगे सोडियम और H2O का, तो इट विल बी नॉट 3 टाइम्स और 4 टाइम्स। H2O का कितना होगा? 36। सोडियम क्या होगा? 46। इट इज अराउंड 80, तो डबल ही हो गया ना। और सबसे हाँ आसान 3.4 का मल्टीपल ही है वो, या 17 का मल्टीपल 34 है। उसी से मैं गेस कर रहा हूँ, ऐसा फिक्स नहीं बोल रहा हूँ। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनको भी हो गया है सॉल्व, उनको लगता है कि मुझे डिस्कशन नहीं देखनी है। उनको मैं असाइनमेंट दे चुका हूँ, आप करिए। हाउ मेनी मोल्स ऑफ MnO4 माइनस विल रिएक्ट विद फेरस ऑक्सीलेट? व्हाट इज फेरस ऑक्सीलेट? हमने जस्ट ऊपर लिखा है FeC2O4। तो MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम बोल दिया, करना है ही नहीं किसी में कुछ, इतना ही, इतना आसान है। स्कैन फैक्टर 5, स्कैन फैक्टर 3। हाउ मेनी मोल्स ऑफ, तो यहाँ पे n मोल्स कर लेता हूँ, यहाँ पे 1 मोल। तो n इंटू 5 क्या होगा? इक्विवेलेंट। 1 इंटू 3 क्या होगी? इक्विवेलेंट। n इंटू 5 इक्वल टू 1 इंटू 3, देयरफॉर n is what? This. Next. What volume of, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, तो ये टाइम पास ही हुआ। K2Cr2 7 के n फैक्टर 6, FeC2O4 के n फैक्टर जस्ट लिखा है 3। K2Cr2 7 ऑलवेज वर्क्स इन एसिडिक मीडियम। ये 0.6 मोलर 200 ml, 0.05 मोलर और VML लिख लेते हैं। तो इक्विवेलेंट्स क्या होंगे? मानवी समझ में आ रहा है सारा ना? यस सर। मुस्कान, आर यू देयर? मुस्कान है कि नहीं? लो, मुस्कान कहाँ चली गई? फ्रॉम दिस V इक्वल टू क्या होगा निकाल सकते हैं? 0.6 इंटू डो डेटा, वेरी सिंपल। एक मिनट। अच्छा, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको। इंटू 6, तीनों क्वेश्चन हो गए, तीन ही क्वेश्चन थे ही। तो आते हैं एक्सरसाइज 2 पे, या वॉल्यूम स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चन पे आप कर लीजिए।
that 34 gram of H2O2 is present in 1120 ml of solution. This solution is called. और उन्होंने आपको मैंने पहले बताया था कि अगर मुझे 10 वॉल्यूम्स या 30 लिखा है मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग व्हाट वॉल्यूम स्ट्रेंथ. Am I audible to all of you? हेलो. Yes, sir. Yes. हाँ बेटा ठीक. तो आप निकालोगे क्या गिवन डेटा से मोलैरिटी कितने मोल्स आएंगे इसमें? Why 34? Because molar mass of H2O2 is what? 34. तो मोल्स कितने हो गए? 1 अपॉन वॉल्यूम कितना लिया हमने ml में, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000. मोलैरिटी आ गई. नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ? क्या था? मोलैरिटी इनटू 11.2. दिस कितना है आंसर? 10 वॉल्यूम्स. एक मिनट बेटा. नेक्स्ट प्रॉब्लम है. दिशा इसमें कोई डाउट नहीं है? नहीं सर. दोनों ही पिक कर लेते हैं, दोनों ही वन लाइन का सॉल्यूशन है. H2O2 plus MnO4 minus H plus 10 ml. वॉल्यूम स्ट्रेंथ x है तो फर्क नहीं पड़ता है. वॉल्यूम स्ट्रेंथ मान लो x भी है, x इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ. एक मिनट.
नेक्स्ट सॉरी बेटा, x वॉल्यूम है तो मोलैरिटी क्या होगी, x अपॉन 11.2 मोलर होगा। नॉर्मलिटी क्या होगी, x अपॉन 5.6 होगा। n फैक्टर क्या होता है इसका, 2 होता है। अब आसान लग रहा है, दिशा बताओ। हेलो, हाँ सर। आसान है। अच्छा, n बाई का मतलब क्या होता है, लिखिएगा n बाई 10 मतलब क्या है, नॉर्मलिटी क्या हो गई, 1 बाई 10 नॉर्मल, समझ गए। हाँ सर। डेसी नॉर्मल मतलब क्या हो गया, 1 बाई 10 नॉर्मल। सेंटी नॉर्मल क्या होगा, 1/100 नॉर्मल। तो ये सब परेशान करने के लिए लिखते हैं, बट परेशान नहीं होना है। यहाँ पे क्या होगा, 1.1 अपॉन 0.56 नॉर्मल। अब ये नॉर्मलिटी ऑलरेडी दिया हुआ है तो एन फैक्टर की कोई जरूरत ही नहीं है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। यहाँ भी अगर नॉर्मलिटी मुझे पता है तो इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। तो दोनों क्या कर देंगे, इक्वेट। x अपॉन 5.6 इंटू 10 इक्वल टू 0.56 इंटू 10। x इक्वल टू क्या आ गया, 10। 10। सब सिंपल क्वेश्चन है, पर सिंपल क्वेश्चन से कॉन्फिडेंस बढ़ती है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ तो 1.5 नॉर्मल, 1.5 नॉर्मल दिया हुआ है, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है, नॉर्मलिटी इंटू 5. 5.6। तो नॉर्मलिटी 1.5, 5.6, कितनी वैल्यू आएगी इसकी, 8.4। 8.4। देखिए, इट्स अ गुड क्वेश्चन, दोनों पिक कर लेते हैं। तो टाइट्रेशन के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सेम ही है। ऑब्वियसली इजी लगना चाहिए, इजी लगेगा तो फिर हम बढ़ा क्यों रहे हैं, लगना ही चाहिए बेटा। लेकिन आप बाहर निकलिए, पूछिए लोगों से, रेडॉक्स टाइट्रेशन क्वेश्चन कैसे करेंगे यार, बड़ा बड़ा मुश्किल है, टाइट्रेशन तो होता ही नहीं है। आप पूछ के देख लीजिए, फीडबैक ले लीजिए। हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयोडीन आर लिबरेटेड व्हेन 1 मोल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 प्लस पोटेशियम आयोडाइड गिविंग, क्या दे रहा है, I2 दे रहा है। इसकी एन फैक्टर आपको पता है 6 होती है, बिकॉज ये काम ही करता है एसिडिक मीडियम में, मेंशन नहीं भी है तो किसमें काम करेगा, एसिडिक मीडियम में। I2 की एन फैक्टर निकाल सकते हैं, इसकी -1, इसमें 0, change is 1 but 2 iodine atoms 2, कितने इक्विवेलेंट्स हो गए, 10। इसका x मोल्स मान लेते हैं, x into 2 इक्विवेलेंट, तो 1 into 6 equal to x into 2, therefore x equal to 3। सॉल्व हो गया। नाउ सब लोग जे वाले भी ढंग से लिखिए क्वेश्चन नोटबुक पे। ClO2 oxidizes H2O2, सॉल्व करिए क्वेश्चन को। कुछ नहीं है, बस थोड़ा नयापन है, क्योंकि ClO2 अभी तक हमने कई बार यूज नहीं किया, पर फर्क नहीं पड़ता, वी कैन फाइंड आउट द इम्पैक्ट, है ना ईशा। हाँ सर। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl क्या है बताइए, +4। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl यहाँ पे क्या है, -1। -1। तो चेंज इज व्हाट,
दे दो 5। H2O2 का फैक्टर 2 ही होता है, चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो या रिड्यूसिंग एजेंट हो। व्हाट इज ClO2 वर्किंग एज? व्हाट इज दिस वर्किंग एज रिड्यूसिंग एजेंट? अब Oxidizing कोई agent. क्वेश्चन में दम बचा नहीं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2O2? तो ये x मोल्स ले लिया, 1 मोल ले लिया। इक्विवेलेंट क्या होगा? 10। 1 into 5 equal to x into 2. और दोनों को इक्वेट कीजिएगा, 2.5. फिर आप बोलेंगे सर इसमें आपने क्या अच्छा देखा? कुछ नहीं नया देखा, रिएजेंट नया था बस। मेथड तो वही है, मेथड बदलने वाला नहीं है। चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट पर मॉलिक्यूल, टोटल चेंज ऑक्सीजन स्टेट पर मॉलिक्यूल वही करना। हो गया। और 62 उस दिन डिस्कस किया था, 262 कंप्लीट ही नहीं था। X moles of potassium dichromate plus ferrous oxalate acidic medium। अब देखो इतनी बार एन फैक्टर आप लिख रहे हैं, फिर आप कहेंगे सर मुझे एन फैक्टर नहीं आता, तो मतलब आप पढ़ाई के जगह पर कुछ नहीं कर रहे। कितनी बार एन फैक्टर लिख रहे हैं? फिर किसी दिन आपसे हम पूछेंगे कि बताइए एन फैक्टर इसका, सब पता नहीं। मतलब आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे, इसका मतलब और कोई रीजन नहीं। क्योंकि अगर आप क्लास में ढंग से सुने, रेस्पॉन्ड करें, एक बार थोड़ा देख लें नोटबुक में, तब भी बहुत है। इसमें आंसर मैच नहीं कर रहा है क्या? ना 3 है ना? तो 60 ना? हाँ हाँ मैच करेगा करेगा। x इक्वल टू 3 बाई एन फैक्टर 3 है ना इसका, 2 नहीं है। फेरस ऑक्सीडेट है ना ये, फेरस ऑक्सीडेट। और फेरिक ऑक्सीडेट का 6 होता है, हमने ऊपर लिखा था फेरिक ऑक्सीडेट। क्या नाम है इसका? फेरस, Ferric oxalate. इसका फेरस ऑक्सीडेट। और ये क्या है? Ferric oxalate. फेरिक ऑक्सीडेट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट आ ही गए। If equal volumes of K1O4, अब यहाँ पे दो रिएक्शन है, K1O4 K2Cr2O7, K1O4 रिएक्टिंग विद। जे वाले मैंने आपको कहा, जो भी एडवांस फोकस्ड है उन्हीं को मैं कहूंगा करने के लिए। पहले तो आप जो असाइनमेंट शेयर किया मैंने उसको ट्राई कर लेना, और रिडॉक्स टाइट्रेशन का पी बहादुर से कर लेना। बुक शेयर नहीं किया मैंने, कर देता। यहाँ पे Fe2+ है, किस में कन्वर्ट हो रहा है? Fe3+ में। Fe2+ है, किस में कन्वर्ट कर रहा है? Fe3+ में। एसिडिक मीडियम होगा, हाँ एसिडिक मीडियम है। इसकी एन फैक्टर 5, इसकी एन फैक्टर 6, इसकी एन फैक्टर 1, क्योंकि Fe2+ से Fe3+ ही कन्वर्ट हो रहा है। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज 1। तो हमने यहाँ पे ये 1 मोलर लिया, ये 1 मोलर लिया, वॉल्यूम V लिया, V लिया, तो कितने इक्विवेलेंट्स हो गए? 1 into V into 5 इक्विवेलेंट्स हो गए, 1 into V into 6 इक्विवेलेंट्स हो गए। ऑब्वियसली कौन सी इक्विवेलेंट ज्यादा है? डेफिनेटली, बिकॉज इसका तो 1 ही है, इसका तो 1 ही है। मान लो x मोल्स लिया, यहाँ पे हमेशा मोल से कंपेयर किया करिए, इक्विवेलेंट से नहीं। तो हमने Fe2+ यहाँ पे क्या होगा? x into 1
यहाँ पे क्या होगा y into 1, तो 1 into v into 5 should be equal to x into 1, 1 into v into 6 equal to y into, because equivalents can change but moles cannot change. तो यहाँ पे x equal to 5v, यहाँ y equal to 6v, definitely y is more than x. तो किसमें ज्यादा मोल्स ऑक्सीडाइज हुए? विथ K2Cr27। ये बुकलेट जे वाले बुकलेट में भी था, वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर K2Cr27 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज। एक ही क्वेश्चन 50 बार एक ही तरीके से पूछता रहेगा, अलग अलग तरीके से पूछता रहेगा बस। हाँ सर। तो ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ये फर्स्ट दिन ही आ जाना चाहिए था। आपने जितने भी क्वेश्चंस किए सब में एक ही काम करनी है कि नहीं बताओगे सर? बस कहने के लिए हम क्वेश्चन नहीं आया। एक बार एक बच्चे ने कहा भी था कि सर ये क्या गलत मजाक है, 2 लाइन पढ़ा के पूरा चैप्टर निपटा दिए। 2 ही लाइन पढ़ाया ना, टोटल चेंजिंग ऑफ स्टेट पर मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड पर मॉलिक्यूल, और उसके साथ क्या यूज करनी है, इक्विवेलेंस इक्वेट करना। रेडॉक्स के सारे क्वेश्चन उसी से हैंडल हो जाएंगे, है ना? बताओ। हाँ सर। K2C पर ये एक्सेप्ट नहीं करते कोई। FeSO4 में क्या स्टेट है? +2, तो +2 से किसमें कन्वर्ट होगा? +3। तो FeSO4 में +2 से +3 was change in 1, for 1 molecule change of state is what? 1 n factor 1। इसके n factor तो 50 बार लिख चुके, अब भी अगर कोई याद नहीं कर रहे हैं तो मैं क्या बताऊंगा। ये 35 ml, ये 0.5 मोलर, ये V हमें नहीं पता, तो 0.1 into V into 6 should be equal to 0.5 into 35 into 1, V निकल जाएगा। देखिए 1 मोल ऑफ इक्विमोलर मिक्सचर, 1 मोल मिक्सचर है जिसमें इक्वल मोल्स किसके हैं? फेरिक ऑक्सीलेट के और फेरस ऑक्सीलेट के। तो इसके कितने मोल्स हो गए? 0.5 मोल। इसके भी कितने मोल्स हो गए? 0.5 मोल। अब अलग अलग लिख देंगे। फेरिक ऑक्सीलेट का फॉर्मूला Fe2 C2O4 thrice plus Ka1O4 acidic medium ठीक है। ये मैं y मोल्स ले लेता हूँ। ये कितना है? 0.5 मोल्स। n फैक्टर क्या थी इसकी? 6। n फैक्टर क्या है? 5। तो क्या करना है? 0.5 into 6 should be equal to y into 5। फेरस ऑक्सीलेट प्लस Ka1O4 H प्लस Z मोल्स NF5। यहाँ पे NF क्या है? 3। ये भी 0.5 मोल्स। करनी क्या है? 0.5 into 3 should be equal to Z into 5। Y की वैल्यू 0.5 into 6 upon 5, Z की वैल्यू 0.5 into 3 upon 5, बट टोटल कितने दिए हुए हैं? विल रिक्वायर ना, मिक्सचर रिक्वायर्ड ना, y plus z equal to x, तो x equal to क्या हो जाएगा? 0.5 into 6 upon 5, 0.5 into 3 upon 5। नाइन इंटू 0.5 अपॉन 5 क्या आ गया? सर
सर इतना करने से अच्छा हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 इक्वल टू दोनों का बिल्कुल एडिशन। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पर मैंने आपको सेपरेटली क्यों बताया कि हो सकता है अलग अलग मीडियम देते तो KMnO4 के n फैक्टर भी अलग अलग हो सकते थे, बट यहाँ पे मीडियम सेम था तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे आप क्या कह रहे हैं, आप सिंपली ये कह रहे हैं x शुड बी इक्वल टू या x इंटू 5.5 इंटू 6 प्लस 0.5 to 3। बिल्कुल x की वैल्यू हो जाएगी 0.9। लिखना तो सॉल्विंग के टाइम में तो ऐसे ही करना है बेटा आपको, तो मैं समझा रहा हूँ तो थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर। मैंने वैसे किया था। हाँ बिल्कुल सही है। अब आते हैं यहाँ से, गिव अ ट्राई ऑन दिस। ये किया है आपने? नहीं सर, इसके आगे के 3-4 क्वेश्चन बाकी है। बाकी तुम पिछले बार यही बोले थे कि सर ये 3-4 बचे सर हैं। कल नहीं किया मैंने। हाँ बस ये क्या मतलब हुआ, 3-4 तो क्वेश्चन करते हैं। कल दिन भर में कितने यूनिवर्सिटी सॉल्व किए? कुछ नहीं। चलो अभी करो, सब लोग अभी करो। Okay. अब ये सब क्वेश्चन नहीं आते नीट लेवल पे, आते ही नहीं है। बहुत पहले एम्स में आया करते थे, अब वो भी नहीं आते। जैसे आपको मैंने कहा भी है कि आपकी फाइट टफ क्वेश्चन है ही नहीं, आपकी फाइट सिर्फ और सिर्फ स्पीड है। दोनों क्वेश्चन ट्राई करिए सब लोग। ये आप लोगों ने जे वाले किए हो क्या? जे वाले एक्सरसाइज 3 किया हो ना पूरा सॉल्व? एक्सरसाइज 3 किया कि नहीं आप लोगों ने? टाइट्रेशन के क्वेश्चन, वही 3 क्वेश्चन है जो यहाँ दिख रहे हैं आपको, वही वहां दिख रहे हैं। 36, 38, 39। सुमित किया है कि नहीं? तुमका सुमित है सेशन में? सर बाकी है, कुछ क्वेश्चंस बाकी है सर। ये देखो तुम लोग का वही बाकी, तो असाइनमेंट में क्यों शेयर किया बताओ? इतने दिनों में, एक हफ्ते में तुम लोगों ने वो एक्सरसाइज ही खत्म नहीं कर पाया, बताओ। अभी करो फिर, अभी खत्म करो इसको। 21 एंड 23 दोनों ही 37 है। जेई में कौन सा नंबर है? 37 है और 39 है सर। 39 है। सारे क्वेश्चंस को फटाफट बताया, पर इसमें आप रुक गए क्योंकि इसमें आपको सोचना पड़ेगा फिर से। पहले क्वेश्चन बड़ा आसान है, 40 ml ऑफ द डाइल्यूटेड सॉल्यूशन रिएक्टेड विद 10% इम्प्योर कुछ लिखा है। तो ये 40 ml किसका? जो नया सॉल्यूशन जो तैयार किया मैंने उसका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या सीखना है इस क्वेश्चन में? देखिए, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में, एक मिनट, तो पहले आप हमारे पास सॉल्यूशन थे, 2 सॉल्यूशन थे। 20 ml ऑफ 0.2 मोलर NaOH और एक 35 ml of 0.1 molar NaOH. What we did with these 2 solution? We mixed both.
and diluted to 100. What is the number of moles in mixture? तो molarity of mixture का formula याद है? So M1 V1 plus M2 V2 M1 upon 100. V1 plus M2 V2 upon Summation total. mi bi upon. तो सडनली कौन सी थ्योरी आ गई? तुरंत क्लिक नहीं किया मतलब आपको रिवाइज कमजोर है। सिंपल सी बात है। किसको दिमाग में आया था पहले ये करना है? कितने लोगों को समझ में आया था? तो मुझे आया था। वेरी गुड। 0.2 into 20 प्लस ये आ गया तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। अब व्हाट इज द फाइनल? डायल्यूटेड 2 लिखा है, डायल्यूटेड बाय नहीं, मतलब दोनों को मिक्स किया तो कितना होना चाहिए था? 55 होना चाहिए था, पर उसमें हमने और भी पानी डाल दिया। तो व्हाट इज द फाइनल सॉल्यूशन? 100। कितनी वैल्यू आ गई इसकी? सर 0.75 शायद है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। 0.2 into 20 कितना आ जाएगा? 0.4 नहीं कितना सर आएगा? 0.075 है। कितना आएगा ये? 0.2 into 20 क्या होगा? 4। 4 ये 3.5, ये 100, तो 0.075 मोलर हो गया। नाउ दिस इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज गोइंग टू यूज्ड इन द रिएक्शन। अब आता है NaOH प्लस H2C2O4। अब H2C2O4 भी क्या इम्प्योर है? वो भी इम्प्योर है। तो हम इसके बारे में जो 10% लिखा है कुछ को जो पता नहीं। कितनी मोलैरिटी यूज कर रहे हैं? 0.075 मोलर। वॉल्यूम क्या यूज कर रहे हैं? 40 ml। नाउ इट इज यूज्ड एज एन एसिड, तो स्टेप वाइज न्यूट्रलाइजेशन होगा। लेकिन अगर रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो व्हाट इज एन फैक्टर? 2। स्टेप बाय स्टेप करते, फर्स्ट स्टेज करते, सेकंड स्टेज करते, तो अलग अलग यूज करते हैं, पर हम लोग ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन लिखा। इसके मोल्स लिख लेते हैं, x मिलीमोल्स। x ग्राम ले लेते हैं, चलिए x ग्राम ले लेते हैं। तो मोल्स क्या होगा बताओ? x/90 मिलीमोल्स क्या होगा? x/90 into 1000 ये क्या होगा? इक्विवेलेंस। अब ये तो कुछ नया लिखा ही नहीं है मैंने। एन फैक्टर यहाँ पे क्या होगी? 1। मिली इक्विवेलेंस क्या होगी? 0.075 into 40 into 1 मिली इक्विवेलेंट। तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे? इक्वल। करिए इक्वल। तो मैंने यही 0.07 किया है। वेरी गुड, सही है। तो पर मुझे आंसर ऑप्शन ऑप्शन बी आ बी रहा आ है। रहा है। देखते हैं। into 2। तो ये आपने किया तो आई एम वेरी हैप्पी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज आंसर गया भाड़ में। 0.075 into 40 into 90 upon 1000 into 2 ये आ गया। पर कहता क्या है वो? 10% इम्प्योर सैंपल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इम्प्योर है। तो ये तो जो मिला मुझे, दिस इज प्योरिटी जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया। assume that if impure sample has W gram weight, then W into 10%, क्योंकि 10% ही प्योर है उसका, this, तो W की वैल्यू हो जाएगी 0.075 into 40, 90, 1000 into 2, देखो कितना है आंसर। और आपने ये सब सारे किए हैं, मतलब मेरी टीचिंग कंप्लीट हो गई। सिंपल सी बात है। कितना आ रहा है? 0.075 into
सर 1.35. आंसर है क्या ऑप्शन? नहीं सर, सर ऑप्शन बी मेरे को आया 0.135. हाँ सर. हाँ सर, इससे भी वही आ रहा है 0.135. और आंसर में क्या दिया हुआ है? 0.15. 0.15 दिया हुआ है। सर हमारे बुकलेट में बी दिया आंसर. बी हाँ आंसर सर, बी सही दिया है। है. तो मतलब बराबर है. सुमित ये पूरा किया था तुमने, पूरा स्टेप? हाँ सर. मतलब मेरी टीचिंग सफिशिएंट हो गई, मतलब कंप्लीट हो गई। ये कर लिया मतलब अब इससे क्वेश्चन क्या बचता है? हमने यहाँ पे पहले क्या करते थे, एक सॉल्यूशन तैयार करते थे, उससे हम कुछ एमएल निकाल के यूज करते थे। यहाँ पे तो मिक्स किया, नया सॉल्यूशन तैयार किया, डाइल्यूट किया, डाइल्यूशन भी लगा दिया, फिर उसे सॉल्यूशन यूज किया। सब आपने अगर यूज कर लिया मतलब गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मतलब कुछ कहना ही नहीं है। ये वाली क्वेश्चन, ये तो आसानी है, जब वो कर लिया आपने इसमें तो क्या ही था। ये कर रहे हो कि कर लिए? तो करना है. करिए। सभी क्वेश्चन मुश्किल है बेटा, देख लो, बता दूं आपको। ये मैंने टच ही नहीं किया। सॉल्विंग में टाइम लगेगी 38। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 38। आई थिंक सबसे अच्छा क्वेश्चन वही था। ये भी ठीक ठाक सा क्वेश्चन है, सब ठीक ही ठाक है। 41 भी प्यारा क्वेश्चन है, उसके बाद कोई दम नहीं है। ठीक है सर अभी करिए आपने जो क्वेश्चन बोले उतने ही क्वेश्चंस बाकी थे मेरे. उतने क्वेश्चन बाकी है मेरे. वो तो तुम्हारे पहले कल भी बाकी थे, कल ही बाकी थे क्या इतने क्वेश्चन? इतने क्वेश्चन कल ही बाकी होंगे, परसों भी तुम्हारे इतने क्वेश्चन ही बाकी होंगे। नहीं सर, परसों मैंने किया था. अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, करो। NaOH plus Na2CO4 रिएक्शन नहीं होगी, NaOH plus H2CO4 रिएक्शन होगी। व्हाई? दिस इज व्हाट? बेस। बेस. और ये क्या है? एसिड। दिस इज व्हाट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये तो सॉल्ट है। सॉल्ट के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, बट यहाँ पे कटायन भी सेम है, तो कुछ खास चेंजेस तो होगी नहीं। एक्सचेंज भी करेंगे तो सोडियम के साथ ही एक्सचेंज होगा ना, अनायन का एक्सचेंज। हाँ सर. तो नया क्या बनेगा? कुछ नहीं। तो KNO4 is going to react with both, but NaOH is going to react with only H2C2. H2C2O4. बस Na2C2O4 सर अभी आया आंसर. अब तो आना ही है। H plus H2C2O4 plus KMNO4 H plus 2 मोल्स है, ये 1 मोल है, ये 1 मोल है। N factor as a reducing agent 2, यहाँ भी N factor as a reducing agent 2। तो इक्विवेलेंट्स 1 into 2, ये 0.1 मोलर, N factor 5, V1 liter, 0.1 मोलर, N factor, अच्छा ये V1 लीटर नहीं है, ये X लीटर है, ये Y लीटर है मान लीजिए। पर X plus Y क्या है? V1। तो 1 into 2 plus 1 into 2 should be equal to 0.1 into X into 5 plus 0.1 into Y into 5, that is nothing but 0.1 into V1 into 5. तो V1 is 4/0.5 है ना? ऐसा ही होगा ना? ठीक है। सिमिलरली NaOH, तो NaOH तो सिर्फ एक ही से रिएक्शन करने वाला है और ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। इसकी वैल्यू 0.2 मोलर V2
n factor should be 1. ये 1 मोल रिएक्शन करने वाला है, 2H प्लस निकलेंगे इससे। क्या कीजिएगा, 0.2 into V2 into 1, 1 into 2, from this V2 is 0.1, so V1 upon V2 will be V2 10 हो गया ना शायद, 10, 4 upon 0.5 divided by 10. क्लियर सबको? हाँ सर। ट्वेंटी टू भी ट्राई कीजिएगा। नीट के लिए कोई जरूरत नहीं, नीट में आते ही नहीं इतने टफ क्वेश्चन, पर करके रखेंगे तो आपका डर हट जाएगा, डर रहेगा ही नहीं। नहीं सर, ट्राई कीजिए। देखो अभी थोड़ा लेंथी भी है और थोड़ा सा मुश्किल है। मुझे एक बात बताइए, वी हैव FEO एंड मुश्किल मतलब हैंडलिंग मुश्किल है, थियरी तो कोई मुश्किल है ही नहीं। यहाँ पे क्या है +2, यहाँ पे क्या है +3। यूजिंग KMnO4 ऑक्सीडाइज कौन होगा? सब पढ़ाया मैंने आपको। FeO बिकॉज Fe3+ में अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं नथिंग विल टेक प्लेस, बट Fe2+ में डालते हैं तो Fe3+ में कन्वर्ट होता है। is completely reacted with 100 ml of 0.25 molar acidified KMnO4 solution, and KMnO4 solution is what? Oxidizing agent. The resulting solution was then titrated with zinc dust, which converts, सब लिख रहा है, solution was then titrated with zinc dust, which converted Fe3+ to the solution of Fe2+. The Fe2+ required 1000 ml of 0.1 molar K2Cr27. Find out the percentage of Fe2 in the picture. ये तो क्लैरिटी हो गई, ये तो क्लैरिटी हो गई कि FeO में जितने Fe2+ होंगे वो सभी किससे ऑक्सीडाइज हो जाएंगे? KMnO4 से। KMnO4 से। अब मान ली अगर ये A मोल्स हैं तो Fe2+ भी कितनी होगी? A मोल्स होगी, है ना? कोई दिक्कत नहीं। 100 ml 0.25 मोलर, ये मिलीमोल्स कर लीजिए बेटर, क्योंकि 1 FeO contains 1 Fe। A मिलीमोल्स, ठीक है। एन फैक्टर क्या होगा? बिकॉज Fe2+ किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Fe3+ में। 5 है ना? एन फैक्टर 5, यहाँ पे एन फैक्टर 1, और तो A into 1 क्या हो जाएगा? 0.25 into 100 into 5, तो ये मिल गया मुझे। 125। अच्छा हाँ, हो गया ये। अब क्या हुआ कि जैसे ही अब सारे FeO किसमें कन्वर्ट हो गए? Fe3+ में। तो कितने Fe3+ हैं? A मिलीमोल्स। Assume that Fe2O3 B मिलीमोल्स है, तो इसमें कितने Fe3+ होंगे? बोलिए। Fe2O3 में कितने Fe3? बोलो। B मिलेगा। B कैसे बच्चा? यही सब गलतियां कर बैठते हो तुम ना, 1-2 मार्क्स लूज कर देते हो। Fe2O3 में Fe3+ है, तो 1 Fe2O3 contains 1
Fe2O3 contains फंडामेंटली रॉन्ग होती है, क्वेश्चन टफ जो लगता है उसमें फंडामेंटली रॉन्ग होती है, इसलिए हम लोग मिस कर देते हैं। 2Fe3+ आयन। तो अगर B मोल मिलीमोल्स लिया तो कितने Fe3+ होंगे? 2B मिलीमोल्स। 2B. तो आफ्टर रिएक्शन विद KNO4 द रिजल्टिंग आफ्टर reaction with KMNO4 resulting solution contains कितने Fe3+? बताइए। ये किसी को चमका कि नहीं बताओ? तो KMNO4 के साथ बस FeO ही रिएक्ट करेगा ना? हाँ तो FeO रेड कराया ना, कहाँ मना कर रहा हूँ मैं। FeO रेड कराया और किसमें कन्वर्ट हो गया? Fe3+ में। और जो Fe2O3 से जो Fe3+ था वो तो ऐसे ही रहेगा। हाँ सर। तो जनरेट व्हाट इज A? जनरेटेड फ्रॉम FeO and what is 2B? Already present in Fe2O3. present in, कुछ टफ समझाओ तो बताओ मुझे। Fe2O3 तो मेरे पास Fe3+ कितने हैं? A+2B। अब मैंने क्या किया, Fe3+ को फिर से क्या कन्वर्ट कर दिया Fe2+ में बाय यूजिंग व्हाट? जिंक डस्ट। तो ये अगर A+2B है तो ये भी क्या बनेगा? A+2B. एनी डाउट हेयर? नो सर। कुछ भी टफ लगे तो बताइए स्टेप्स। फिर से हम क्या करा रहे हैं, जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन अगेन कन्वर्ट करने के बाद रिक्वायर्ड 1000 ml ऑफ 0.1 मोलर K2Cr2O7। तो फिर से हम रिएक्शन करा रहे हैं, फिर से हम Fe2+ का रिएक्शन करा रहे हैं। किसके साथ? K2Cr2O7 के साथ। किसमें? एसिडिक मीडियम में। 0.1 मोलर 1000 ml n फैक्टर 6। ये कितना मोल्स है? A+2B मिलीमोल्स है। इसकी n फैक्टर क्या होगी? 1। रिपीटेड चीजें कर रहे हैं, जैसे आपने कहा सब आसान है तो ये भी आसान होना चाहिए था। मिली इक्विवेलेंट यहाँ पे 0.1 into 1000 into 6 मिली इक्विवेलेंट। तो A+2B should be equal to what? 10। A क्या था? 125। और ये कितनी आ रही है? 600 आ रहा है ना? हाँ सर। तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी? 600 minus 125 that is 475 upon 2 मिलीमोल्स। तो मिक्सचर में मुझे FeO आ गया 125 मिलीमोल्स, Fe2O3 आ गया 475 upon 2 मिलीमोल्स। FeO का मास क्या होगा? इनटू मोलर मास। FeO का मोलर मास 56 प्लस 16 72 ग्राम। और इसकी मास 160। डेफिनेटली मिलीग्राम आएगा।
9000 ग्राम, इसकी वैल्यू 475 इंटू 80 मिलीग्राम, मतलब 9 ग्राम। ग्राम निकालना क्या था क्वेश्चन में? फाइंड द परसेंटेज वेट ऑफ द मिक्सचर। तो परसेंटेज ऑफ Fe2O3 will be 38 upon 38 plus 9। देखिए कहीं कोई गलती हो तो देखिए, कहीं स्पेलिंग कुछ कैलकुलेशन में गलती हो जाए। जीरो पॉइंट 80.85%। क्या बात, समझ में आया मेथड पूरा? हाँ सर। तो लर्निंग क्या थी? देखिए लर्निंग क्या था, इसमें एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जिसमें शायद मेंशन है। इसमें हम FeO की जगह पे FeSO4 FeC2O4 दोनों ले लेते हैं, और Fe2O3 की जगह पे फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल फॉर्मेट सेम रहता, सिर्फ FeO और Fe2O3 जगह पे FeSO4 लिख दीजिए और FeC2O4 लिख दीजिए। यहाँ पे सबसे बड़ी लर्निंग है कि KNO4 is not reacting with Fe2O3, it will be as it is। फिर हमने after reaction with KNO4 we are obtaining Fe3+ in the solution। सारे Fe3+ को कन्वर्ट किया Fe2+ में, फिर उसको ऑक्सीडाइज कर दिया। तो बेसिकली 2 स्टेप में रिएक्शन कराया हमने, 2 बार कराया रिएक्शन। सब कुछ लगा दिया, मोल कॉन्सेप्ट लगा दिया कि 1 मॉलिक्यूल में इतने एटम्स होते हैं तो कितने होंगे, सब लगा दिया। इक्विवेलेंट्स लगा दिया, परसेंटेज बाय मास लगा दिया, कितने प्रेजेंट है मिक्सचर में, परसेंटेज अमाउंट कितना है प्रेजेंट निकाल दिया। तो दिस विल बी अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें एक और टफ मैं बता दूं, क्यों दूसरा टफ लगेगा। अगर मैंने FeSO4 ले लिया और FeC2O4 ले लिया, तो FeC2O4 का इनफैक्टर 3 होगा, क्योंकि C2O4 भी ऑक्सीडाइज हुई और दोनों ही ऑक्सीडाइज होकर क्या बनेंगे, Fe3+ बनेंगे। ये भी Fe3+ बनेगा और CO2 गैस बन के निकल जाएगा। फिर Fe3+ को हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे जिंक डस्ट से, फिर Fe3+ में कन्वर्ट करेंगे, फिर से वही काम रिपीट करेंगे। एडिशनल वर्क क्या होगा, C2O4 इज आल्सो पार्टिसिपेटिंग इन द रेडॉक्स, यहाँ पे नहीं होगा। थोड़ी सी मुश्किल होगी पर पैटर्न बिल्कुल यही होगा, सिर्फ उसमें C2O4 दोबारा नहीं मिलेगा पार्टिसिपेट करने के लिए। सर ऐसे रिएक्शंस लैब में करते हैं क्या? क्या बेटा? ऐसे रिएक्शंस लैब में करते हैं? अब करते ही होंगे, लेकिन इंडिया में लैब बहुत एफिशिएंट है, बताइए आपको। ठीक है ना, सुन रहे हैं? हाँ सर। लैब में करोगे क्या, तुम मुझे बताओ मुझे। तो नहीं सर, मैं बस पूछ रही थी क्योंकि ऐसा क्वेश्चन दिया ना, मतलब लैब में कुछ तो किया रहेगा। आते हैं, मोर सॉल्ट आ गया, क्वेश्चन आते हैं उसके, पर क्या ही होगा, मिलाना उलाना होगा, कुछ कलर वाला चेंज होगा और डेटा लिख देनी होगी। सब तो फेक ही होता है, लैब ही पूरा फेक है। तो लैब में पूरा मार्क्स आना चाहिए सबको, और जबरदस्ती कॉलेज वाले काबिल बनते हैं। तो why I support only at one point I support integrated college। 2 points you can say कि टाइम पूरा बचता है, दूसरा ये लैब का झंझट नहीं होता। वो एक कॉलेज जाएंगे, नहीं सबमिट करेंगे, नहीं एक्सपेरिमेंट करेंगे, 1000 नाटक है। अदरवाइज आप नॉर्मल कॉलेज जाके भी कर सकते हैं, तो पीस ऑफ माइंड रहता है। दूसरी चीज क्या होती है कि लैब में मार्क्स मिल जाएंगे। लास्ट ईयर तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मिला कि जो भी इंटीग्रेटेड कॉलेज के थे वैसे ही सबको मार्क्स भर दिए उन्होंने, सबको 90% आ गया। ये तो एक थर्ड एडवांटेज हो गया जो सदियों में एक बार आएगा, जब कोरोना आएगा तो, या कुछ और ऐसा आएगा तो। इन 2 एडवांटेज हैं कि लैब से पूरा निश्चिंत रहते हैं, लैब के मार्क्स से। दूसरी पीस ऑफ माइंड रहती है पढ़ने की, कोई दिक्कत नहीं है। हर जगह लैब कितना एफिशिएंट होता भी होगा तो क्या होगा उससे? बेसिकली क्या होगा, कुछ देंगे आपको सैंपल, मिलाएंगे, कलर चेंज होगी, वाव, और आप लिख देंगे डेटा। यही होगा ना दिशा, क्या होगा? देखने थोड़ा अच्छा लगता है कि कलर आ गया यार, ब्राउन रिंग बन गया, ब्राउन रिंग टेस्ट हो गई, बस वही लगता है। ठीक है, वो एक अच्छा टाइम स्पेंड होता है लैब में अगर आपने ढंग से किया तो, पर आउटपुट बिल्कुल 0 है मुझे लगता है। मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल 0 ही है। बस इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेंगे आप, जो टेस्ट ट्यूब सब वो सब यूज करेंगे। तो देखो कुछ क्वेश्चन रह ही गए आपके,
लेकिन फिर भी सारे ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो गए। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, एक ही एक रिएक्टेंट, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, कुछ है खास नहीं इसमें। फिर 25 नंबर, हाँ उसके बाद सब सिंपली करना ट्राई, आई विल डिस्कस, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, वरना लेट हो जाएगा। कंप्लीट करना अपनी तरफ से, इन बिटवीन आई विल डिस्कस द क्वेश्चंस, बट गिव अ ट्राई ऑन दिस। जैसे हमने आज टाइम देकर ट्राई किया ना, वो टाइम हमें क्लास में नहीं देना चाहिए, जब आपको हम कहें तो आप पूरा कर डालिए। ठीक है सबको? हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। थैंक्स फॉर योर पेशेंस कि आप बीच में कुछ बोलते नहीं है, पढ़ते जाते हैं। अगर सही ढंग से पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, थैंक यू सर, बाय।